آج کے دن منگل 4 مارچ کو 25% ٹیرف 24 فروری 2022 کو جب وزیر اعظم عمران خان روس گئے تھے اس وقت یوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کیا تھا۔ اب 3 مقاصد تھے، ایک دم سے حملہ کیا گیا، پیوٹن نے اپنے کتنے مقاصد حاصل کر لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کیا ہوگا۔ دیکھیں مارچ اور اپریل تک کی سپلائی، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ورسٹ ترین چیزیں کر سکتا ہے امریکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ٹرمپ نے یوکرین اور زیلنسکی پر بم گرا دیا ہے اور یہ بم گرانے کی وجہ وہ وائٹ ہاؤس کی لڑائی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا اور جس کی نظیر ابھی تک تاریخ میں کبھی نہیں ملتی کہ 2 صدور پورے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے آپس میں لڑے۔ اب کیا ہوگا؟ دراصل ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ وہ کیا ہے جو ایک باپ اپنی نافرمان اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ وہ بدترین کام کیا ہے کہ اس سے زیادہ بدتر یوکرین کے ساتھ امریکہ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرمپ نے یورپ کے ساتھ وہ بدترین کام کیا ہے جس کی وہ اس سے کسی صورت بھی توقع نہیں رکھ سکتے تھے، اور ٹرمپ نے رشیا کے ساتھ وہ بہترین کام کیا ہے جس کا پیوٹن خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ سیٹلائٹ سے لے کے پیٹرائٹ میزائل سے لے کے ہر چیز تک، پیسہ، ملٹری، ہر چیز جو ہے، مورل سپورٹ تک امریکہ کی یوکرین کو 50% سے زیادہ تھی۔ وہ کتنی امداد تھی، کون کون کس کو کتنے پیسے دے رہا تھا، گراؤنڈز کے اوپر کون کون سی سپورٹ تھی، وہ کون کون سے ہتھیار تھے جس کی وجہ سے یوکرین ابھی تک بچا ہوا تھا، اور اس سمیت بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کو اس ویلاگ کے اندر ملنے والی ہے، اس لیے کوشش کیجئے گا کہ اس ویلاگ کو آخر تک دیکھیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب تمام ایڈ روک دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 4 دن کے بعد ٹرمپ یہ اعلان کریں کہ ہم اس ایڈ کو ریزیوم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے آفیشلز نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ تمام لاکھوں اور بلینز آف ڈالر جو ہیں، جو اس وقت تک پائپ لائن کے اندر تھے، جو اپرووڈ تھے، جو ہتھیاروں کی سپلائیاں تھیں، وہ سب فریز کر دی گئی ہیں۔ یوکرین کے روس کو روکنے کی جو کوشش ہے یا جو سٹرگل وہ کر رہے ہیں یوکرین کے حملے کو روکنے کی، اس کو شدید جھٹکا لگا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ معاملہ کس سمت جاتا ہے۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائیڈن بہت زیادہ سپورٹر تھے یوکرین وار کے، اور وہ تھرو آؤٹ یورپینز کے ساتھ مل کے مدد کر رہے تھے۔ اب جو 2024 کے اندر تقریباً $500 ملین کی سپورٹ منتھلی جا رہی تھی یوکرین کو، جو 2025 میں $920 ملین منتھلی کے حساب سے اس کو دی جا رہی تھی، اب تک جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس کا، اس کے مطابق $182 بلین امریکہ سپورٹ کر چکا ہے۔ لیکن جو دوسرے انسٹیٹیوشنز اور ممالک نے مدد کی ہے اس کے اندر اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں تو یورپی یونینز کے جو ممبرز ہیں اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ 113.4 بلین ابھی تک یوکرین کو 2022 سے لے کے اب تک دے چکے ہیں، جس میں $53 بلین نقد فائنینشل سپورٹ تھی، $10 بلین ہیومینیٹیرین سپورٹ تھی، اور $50 بلین یورپی یونین نے ملٹری سپورٹ یعنی ایکویپمنٹس دیے تھے، کسی نے جہاز دیے، کسی نے میزائل دیے، کسی نے اور دیگر لیٹسٹ اسلحہ دیا۔ امریکہ کی بات کریں تو $114.15 بلین جو ہے امریکہ نے دیے، $46 بلین انہوں نے فائنینشل ایڈ دی، $4 بلین انہوں نے ہیومینیٹیرین دی، اور $64 بلین کا اسلحہ 2022 سے لے کے اب تک وہ ان کو دے چکے ہیں۔ اتنا پیسہ تو رشیا نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، ایک سال کے اندر $100 بلین خرچ کر رہا ہے رشیا، اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ کیسے موجیں لگی ہوئی تھی یوکرین کی۔ بے شک وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں، ٹاؤن اجڑ رہے ہیں، شہر برباد ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پیسہ ان کو فوراً دیا جا رہا تھا تاکہ وہ رشیا کے خلاف کھڑے ہوں۔ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں
तो तकरीबन $15 बिलियन जो हैं बरतानिया ने दिए और $25 बिलियन दूसरे ममालिक ने दिए। ट्रंप ने दावा किया था कि $340 बिलियन है, लेकिन इसके अभी तक कोई भी सबूत नहीं है। और यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो $183 बिलियन की बात कर चुका है। देखें ये मामला शुरू कहां से हुआ, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी सारी की सारी क्या है और ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है और कौन कौन सी ऐसी सैटेलाइट और जासूसी के निजाम बंद किए हैं अमेरिका ने, जिसके बाद यूक्रेन के लिए इस जंग के अंदर ज्यादा देर टिकना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये कि अब इस वक्त कितने महीने और कितने दिनों की इमदाद इस वक्त यूक्रेन के अंदर मौजूद है जब तक कि वो उसका सामना कर सकता है। ज़ेलेंस्की को जब ऑफर दी गई कि ये हम जंग रोक रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, ट्रंप की बयानात सामने आ रहे थे, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये वेरी वेरी फार अवे, यानी कि इस जंग का खात्मा अभी बहुत दूर है। इसके बाद ट्रंप ने बयान दिया था कि ऐसा शख्स जो कि हमसे मुत्तफिक नहीं हो रहा और जो किसी भी किस्म की कोई डील नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता, उसको कोई ज्यादा अरसा तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और ना ही उसको सुना जाएगा। अब ये सारी के सारा काम हो गया। ज़ेलेंस्की अमेरिका से सीधे लंदन पे लैंड किए, वहां पे तमाम ममालिक ने उनका जो है इस्तकबाल किया। एक हंगरी के सदर के अलावा तमाम ने उनका इस्तकबाल किया, उनको मदद दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने एक प्लान बना लिया है जो कि अमेरिका के सामने रखा जा सकता है। अब ज़ेलेंस्की का एक मौक़िफ़ यह है कि वो अपने पार्टनर के साथ मामलात को जो है वो तय कर रहे हैं और उनके साथ वो मूव कर रहे हैं। हम अमन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे टाउन बर्बाद हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि दोबारा ये मामला जो है नहीं होगा और रूस जो है इनके ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखें। अब आप ये देखेंगे कल एक खबर आई थी कि जो वजीर दिफा हैं अमेरिका के हैक्सेथ, उन्होंने साइबर ऑफेंसिव ऑपरेशन जो रशिया के खिलाफ है उसको कूल डाउन करने का अपने जो उनका डिपार्टमेंट है उसको ऑर्डर्स दे दिए। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो वर्स्ट तरीन चीज़ें कर सकता है अमेरिका, वो ये कर सकता है कि वो स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम को डाउन कर सकता है और यूक्रेन बगैर इंटरनेट के वहाँ पे आपको पता है कि बगैर इंटरनेट के इस दुनिया के अंदर क्या हो सकता है। अब इस वक्त सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो है वो बंद करने की जा रही है। अब इसके अंदर क्या है देखें, इसमें ये हो रहा है कि जिस तरह बिजली का निज़ाम सारा बर्बाद कर दिया था यूक्रेन का रूस ने, ये सारी की सारी साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो हैं वक्त से पहले आपको दे दी जाती हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या रशिया भी प्लान करने जा रहा है, ताकि उससे पहले ही उसका तोड़ निकाल लिया जाए। ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है और इसके बगैर जंगें आजकल यानी 21वीं सदी के अंदर ये जंगें लड़ना बहुत ही मुश्किल काम है साइबर वारफेयर के बगैर। अब पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर उन्होंने ऑफ कर दिया अमेरिका ने, तो आप ये समझ लें कि यूक्रेन के लोग जो इस वक्त इसराइल वाला लग्जरी जंग के अंदर फील कर रहे हैं कि कोई भी रशियन मिसाइल आता है तो उसको पहले ही उड़ा दिया जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मामला जो हैं ख़राब होने जा रहे हैं। अब ये देखें कि यूरोपियन फायर पावर जो है वो कभी भी यूएस फायर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही वो इतने ज़्यादा असला फराहम कर सकते हैं। यस, कहा यह जा रहा है कि जर्मनी अपना डिफेंस सिस्टम उसको दे देगा, लेकिन ये क्या हम कह सकते हैं कि दिल्ली दूर अस्त। अब इसके अंदर ये मामला चल रहा है कि इस वक्त जो भी चीज़ें हुई थी, अब इसके अंदर होगा क्या। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पुतिन ने अपने कितने मकासद हासिल कर लिए, मैं आपको ये बता दूं कि अब क्या होगा। देखिए, मार्च और अप्रैल तक की सप्लाई इस वक्त यूक्रेन के पास अमेरिकन सपोर्ट की सूरत में मौजूद है। 6 माह तक का सामान कहा जा रहा है कि इस वक्त मौजूद है। सप्लाई लाइन इस वक्त अगर अमेरिका अपनी बंद कर देता तो आधी हो जाएगी, आधी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आती रहेगी। अब जो दूसरे ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने अपनी इमदाद को बढ़ाने का अंदिया दिया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% बढ़ा देंगे, तो 70% के साथ मेंटेन करना मेरे ख्याल से ये मामला ऐसे नहीं होगा कि कल या परसों ही यूक्रेन कोलैप्स कर जाएगा। अभी महीनों लग सकते हैं यूक्रेन को कोलैप्स करने के लिए, क्योंकि अभी यूरोप पूरे का पूरा उसके पीछे खड़ा है।
है और एट लीस्ट डिफेंस के हवाले से कुछ ना कुछ वो उनको फराहम कर सकता है। और ट्रंप ने ये कहा है कि ये इमदाद बंद करने का मकसद ये है कि इनकी अकल ठिकाने लगाई जाए और इनको बताया जाए कि यहाँ पे इस वक्त ये पीस डील करना बहुत ज़रूरी है और ये जो इमदाद बंद करनी की गई है ये एक टूल है पीस की जानिब। अब बात यह है कि इस वक्त जो यूएस का जो रोल है एज ए वर्ल्ड लीडर वो स्टेक पे लगा हुआ है और यूरोप जो है वो भी अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब इस वक्त अगर हम ये देखें कि 24 फरवरी 2022 को जब वजीर आजम इमरान खान रूस गए थे उस वक्त यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया था। अब 3 मकासद थे, एकदम से हमला किया गया खार्किव के अंदर, ओडिशा के अंदर, मेरीपोल के अंदर और डेनिप्रो के अंदर। अब ये 4 जगहों पे एट अ टाइम अटैक कर दिए गए उस दिन। और उस वक्त जो प्यूटन का एक टारगेट था वो ये था कि डी नाजीफिकेशन उन्होंने कहा था, यानी कि नाजी आपको पता है टर्म किस लिए यूज होती है, तो उन्होंने कहा कि डी नाजीफिकेशन, डी मिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन और न्यूट्रल स्टेटस। देखिए इस बात को समझने की जरूरत है कि जब यूएसएसआर टूटा था तो उस वक्त उससे वादा किया गया था कि नेटो कभी भी आपका हमसाया नहीं बनेगा। अब इससे पहले कुछ हमले किए थे रशिया ने, तो हमने देखा कि पोलैंड और दीगर ममालिक को नेटो में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब इस वक्त स्टेटस ये है कि रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है उसको नेटो में शामिल किया जाए, तो इसलिए वो किसी भी सूरत नेटो नेबर कंट्री नहीं चाहता, उसके लिए वो हर स्टेज तक जाने के लिए तैयार है। तो अब जब ये सारे का सारा मामला शुरू हो गया, 20% जो जगह है यूक्रेन की उसके ऊपर इस वक्त रशिया कब्जा करके बैठा हुआ है। 24,000 पाबंदियां इस वक्त रशिया के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद जो रूबल है जो एकदम $1 के मुकाबले में 133 का हो गया था, आज वापस आके 88 रूबल जो हैं वो $1 के मुकाबले में हो गए हैं। चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही हैं। इनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से रशिया को होल्ड कर लिया जाए नेटो सपोर्ट की मदद से, तो वो नहीं किया जा सका। फिर प्यूटन को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी वहाँ गए, चाइना के सदर वहाँ गए, साउथ कोरिया के सदर वहाँ गए और भी बहुत से ममालिक के सदूर वहाँ पे गए। ट्रेड भी चलता रहा और चीज़ें जो हैं वो स्मूथली उनकी चलती रहीं। वो कामयाब हो गया पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में, ऑयल की कीमतें बढ़ाने में, और उससे वो $100 बिलियन तक सालाना वो कमाता रहा। तो उससे उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं मैनेज की और वो इस मकसद के अंदर कामयाब हो गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने अकोमोडेट करना शुरू कर दिया रशिया को। एक तरफ ये साइबर का मामला जो है रोक दिया, कंसेशंस देना शुरू कर दिए ताकि किसी भी मकसद तक ये पहुंच सकें। दूसरा ये कि हमने ये देखा है कि रशिया ने ब्रिक्स भी उस वक्त चलाया शुरू किया और उसके अंदर भी काफ़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन अब आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ये यूरोप के लिए, ये यूएस के लिए, उनकी रेपुटेशन के लिए बीइंग अ वर्ल्ड लीडर के तौर पे किसी भी सूरत ये सही नहीं है। और ट्रंप ने लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो अमेरिका की रेपुटेशन को नाकाबिले तरदीद नुकसान पहुंचाया था और अब फिर ये मामला जो हैं बड़ी तेज़ी से इस जानिब चल पड़े हैं, क्योंकि आज के दिन मंगल 4 मार्च को 25% टैरिफ कनाडा पे और 25% टैरिफ जो है वो मैक्सिको के ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसको अभी तक एक्सटेंड नहीं किया गया, जबकि चाइना के ऊपर 10% टैरिफ पहले लगा दिया गया था और 10% मजीद टैरिफ लगाने का अंदिया दे दिया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ट्रंप जब तक हैं खबरों की दुनिया में भूचाल मचा रहेगा, सुकून नहीं आने वाला। और आपको पता है कि एक खबर जो है वो कैसे पूरी दुनिया के अंदर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और उसका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया के ऊपर बड़ा ही खौफनाक होता है। क्योंकि यूक्रेन की जंग जब हुई थी तो अनाज की कीमतें किस तरीके से बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से बढ़ गया था, कार्गो की सप्लाइयाँ रुक गई थी, ऑयल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। तो जाहिर सी बात है ये इस तरह के ये छोटे छोटे फैसले या बड़े बड़े इनके इम्पैक्ट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।